वाहिगुरु साहिब जियो। सतगुर विटहु वारिया जित मिलिया खसम संभालिया। जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया। इन्नी नेत्री जगत निहालिया। खसम छोड़ दूजै लगे। डूबे से वनजारिया। सतगुरु है बोहि था विरलै किनै विचारिया। कर कृपा पार उतारिया। कर कृपा पार उतारिया। परम सन्मान योग रब्बी ज्ञान दे मुजस्मे ज़ाहरा ज़हूर खाजरा हजूर सर्बे कायनात दे मालिक शब्द गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन मुकद्दस हजूरी अंदर धन श्री गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी ने प्रकाश पुरब नूं समर्पित अज आप जी रात्रि दे दीवान विच हाज़री भर रहे हो। आप जी ने अमृत बाणी का कीर्तन सरवण किया है। उपरंत धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की अमृत बाणी जो आसा राग दे विच दर्ज है, जिस दी चाल तो जिस दी बाणी तो आप जी जाणू हो। हरेक इतिहास गुरुद्वारा साहब दे विच इस वार दी विचार बहुत भावें घट हुंदी है, पर इसनूं गायन जरूर किया जाता है। पर इस आसा की वार दे विच हजूर ने की उपदेश दिता है आपां इस तों जाणू नहीं है। आपां सब तो पहला आसा की वार दी बनतर की है, आसा की वार दे विच किन्नियां पौड़ियां ने, किन्ने सलोक ने, गुरु नानक साहब तो इलावा होर किस दे सलोक उचारण किए हुए ने, महाराज ने इस विच उपदेश सानू की दिता है। आपां बड़े संखेप दे विच विचार करन दा यतन करना है, इकाग्रता बख्शिश करना, तां जो कुछ ना कुछ आपां गुरुद्वारा साहब तो ग्रहण करके लैके जा सकीए। अदब दे नाल गुर फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृत बाणी जिथे रब्बी ज्ञान का मुजस्मा है, उत्थे संसार दे विच जिवें वख-वख काव प्रचलित ने, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृत बाणी विच वो काव भी हजूर ने दर्ज किए ने। जड़ियाँ संसार दे विच धुनां प्रचलित सन, हजूर ने उन्हां धुनां दे उत्ते गाउण की हिदायत भी की है।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 462 ਅੰਗ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਾਰ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਰਾਗ ਆਸਾ, ਸਲੋਕ ਪੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜਾ ਕੀ ਧੁਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਆਪ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹ ਧੁਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੰਗ ਤੇ ਅਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਅਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਆਚਰਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਅਸ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਅਸ ਸੀ, ਸਾਰੰਗ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਸਾਰੰਗ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਅਸ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਸਾਰੰਗ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਈ, ਰਾਣੀ ਆਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਰੇਏ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਅਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ, ਜਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੱਟ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਵਣਜਾਰੇ ਲੰਘੇ ਨੇ ਤੇ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਧੋਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧੋਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਧੋਬੀ ਘਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਖੜਕਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਖੇਪ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਦ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦਾ ਬਲਦ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਅਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ
कि तेरा पुत्र तो बड़े वड्डे आचरण का मालक सी, पर आपां तुहानू पहलां कह नहीं सके। अज फिर तुहानू कह रहे हैं, तुहाडा पुत्र जीवित है, वो बहुत चंगा है, गुणवान है, वो सत संतोख का मालक है। राजे सारंग ने अपने पुत्र नू एक चिट्ठी लिखी है कि यह सारा राजपाट मैं तेनू दे देवांगा, तू एक बार जरूर आके मैनू मिल। ते क्या जाता है, जदों वो अस राजा अपने देश वापस आया, रस्ते दे विच अजे आया सी, जिहड़ी राजे सारंग की दूजी पत्नी सी, उसके दो पुत्रां ने रस्ते दे विच आके रोक लिया। एक दा नाम खान है तो दूजे का नाम सुल्तान है। दोनों की टक्कर हुई है, सारंग जित गया है, सारंग का जिहड़ा पुत्र अस है जित गया है। फिर उत्ते जित दे समय ढाडियां ने वार गाई है कि जिहड़ा अस है बड़े उच्चे आचरण का मालक है। वो ढाडियां ने वार गाई है जो कि वख-वख विद्वानां ने भी लिखी हुई है। भबकिया शेर सरदूल राय रण मारू बज्जे, खान सुल्तान बड़ सूरमे विच रण दे गज्जे, खत लिखे टुंडे असराज नू पातशाही अज्जे, टिक्का सारंग बाप ने दिता भर लज्जे, फतह पाए असराज जी शाही पर सज्जे। यही कारण कि धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज ने गुरु नानक साहब जी की वार नू इस धुनी के उत्ते गाउण की हिदायत की है। ये जिहड़ी वार है इस दे विच 24 पौड़ियां ने। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी के 46 सलोक उचारण किए हुए ने। 14 सलोक धन गुरु अंगद साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी के उचारण किए हुए हैं, जो आसा की वार की बाणी दे विच दर्ज ने। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे विच कुल 22 वारां ने। 22 वारां दे विचों 2 वारां ऐसियां ने जिन्हां दे विच सलोक एक भी दर्ज नहीं है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि उसका नाम वार नहीं है। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी सानू दस रही है, समझा रही है कि जिहड़ा वार का ओरिजिनल रूप है, असल रूप है, वो पौड़ियां ने, सलोक नहीं। सलोक पौड़ियां दे नाल दर्ज हुंदे ने, सलोकां दे नाल पौड़ियां नहीं। जदों आपां 2 वारां वो पढ़ते हैं, सब तो पहली वार है बसंत की वार। ये गुरु अर्जन साहब महाराज की उचारण की हुई है, ये केवल पौड़ियां ने। वो आप जी कई बार रागी सिंघां दे पासों भी सरवण करते हो, हर का नाम ध्याए कै हो हरिया भाई, कर्म लिखन तै पाई है ये रुत सुहाई। फिर दूसरी वार रामकली राग दे विच है, जो बाबा सत्ता ते बलवंड रबाबियां की उचारण की हुई है। नाऊ करता कादर करे क्यों बोल होवे जो खीवद है, दे गुनाह सत भैन भराव है, पर अंगत दान पड़ीवद है, नानक राज चलाया सच कोट सतानी नीवद है। ये 2 वारां दे विच पौड़ियां ने, इन्हां दे विच कोई सलोक नहीं है। ये हो सकता है आप जी नूं विशा थोड़ा जिहा औखा लगे, पर विशा औखा नहीं। ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ पाठ करते हैं, बाणी पढ़ते हैं ਜਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। पर साडी ये त्रासदी है कि बाणी तो आप बहुत पढ़ते हैं, बड़ी सरवण करते हैं, गुरुद्वारा साहब विखे भी आउंदे हैं, पर धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी सानू उपदेश की कर रही है। गुरु नानक साहब महाराज जी का आप प्रकाश पुरब मनाउण चले हाँ, पर गुरु नानक साहब महाराज जी ने किन्नियां यात्रावां उदासियां किन्नियां कीतियां, गुरु नानक साहब जी ने शब्द किन्ने उचारण किते, केड़ी केड़ी बाणी गुरु नानक साहब जी ने उचारण की है, सानू पता ही नहीं। अज थोड़ा जिहा सिख के जाण दा यतन करिए कि आसा की वार दी बड़ी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है, बहुत रागी सिंह गायन करते हैं, पर इस दे विच उपदेश की दिता गया। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज सब तो पहला गुरु की बड़ी उपमा करते हैं। आरंभता दे विच ही गुरु की उपमा है। तो अज गुरु नानक साहब जी का प्रकाश पुरब मना रहे हाँ, तो कदे आसा की वार नूं पढ़ के वेखिए। महाराज जी कहते ने मैं गुरु तो कुरबान जाना। किन्नी क वार कहते ने? दिहाड़ी दे विच एक दिन दे विच सैकड़े वार। क्यों कुरबान जाते हो? कहन लगे ऐसा सतगुरु मैनू मनुख तो देवता बना दिंदा है, तो देवता बनाउण दे वक्त किन्ना क टाइम लगता है, किन्ना क समा लगता है? कहन लगे रत्ती भर भी समा नहीं।
ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। पर कोई सुनन वाला होना चाहिए, कोई बाणी पढ़ने वाला होना चाहिए है। सुनन का मतलब ये नहीं बिना अर्थां तो बिना समझिया तो आपां सरवण करी जाइए। हजूर कहते ने बलिहारी गुर अपने देवहाड़ी सदवार, जिन मानस दे देवते किए करत ना लागी वार। फिर महाराज जी कहते दुनिया दे विच प्रकाश दे बहुत साधन ने। जे ब्रह्मंड दे विच आपां ध्यान मारीए वड्डे वड्डे तारे ने जो इस धरती दे नालों वड्डे ने, जो कि ਵੱਖ-ਵੱਖ ग्रहां दे नालों वड्डे ने, वो बड़ी रोशनी करते हैं, उन्हां दा बहुत प्रकाश है। महाराज जी कहते ने धरती दे जिहड़ा सब तो नेड़े वड्डा सूरज है, बड़ी उसकी रोशनी है, बड़ा प्रकाश बड़ा तेज है। चंद्रमा का बड़ा प्रकाश है, पर महाराज कहते ने इस तरह के चंद्रमा भावें सैकड़े चढ़ जाण, हज़ारां सूरज चढ़ जाण, पर सतगुरु के ज्ञान तो बिना मन दे विच जीवन दे विच हनेरा सदा बनिया रहिंदा है। जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हज़ार, इते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। फिर महाराज जी कहंदे ने जेड़ा कोई मनुख ये कहंदा होवे कि मैं बड़ा सियाणा बड़ा चतुर हाँ, मेरे कोल बड़ा विद्या दा भंडार है, मैं ते बड़ियां डिग्रियां कीतियां होईयां, महाराज जी कहंदे पता उस मनुख की हालत किस तरह की है। आप जी तिलों के बूटियां नूं शायद वेख्या होवे, हुण तां शायद खेती उसकी बड़ी घट गई, कई थावां ते अजे भी हुंदी है। तिलों की खेती करदे आप जी ने वेख्या होवेगा, कई बार तिलों के बूटे इस तरह के होया करदे सन जो किसी काम दे नहीं होया करदे, वो बूटे सड़े हुंदे सन। उन्हां तिलों के बूटियां नूं बुआड़ तिल कहा जांदा सी। सड़े हुए बूटे वो किसी काम नहीं सी आउंदे, ना तेल कड्ढण दे काम ना होर किसी काम। ते जिहड़ा कोई किसान होया करदा सी सारी फसल नूं वढ के लै जांदा सी, पर बुआड़ तिल नूं कदे वढदा नहीं सी, वो किसी काम नहीं। महाराज जी कहंदे जिहड़ा मनुख बड़ा चतुर समझदा है, अपने आप नूं सियाणा समझदा है, वो बुआड़ तिल दी तरह है। नानक गुरु ना चेतनी मन अपना सुचेत, छुटे तिल बुआड़ ज्यों सुने अंदर खेत, खेत अंदर छुटिया कहो नानक सौ नाह, फलियां फुलियां बपुड़े भी तन विच सुआह। फलदा भी है फुलदा भी है पर किसी काम नहीं आउंदा, अंदर सुआह भरी हुई है, राख भरी हुई है। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने जो जपजी दे विच एक ओंकार सर्व व्यापक अकाल पुरख का उपदेश दिता है, आसा की वार की बाणी दे विच भी हजूर ने यही उचारण किया है कि परमात्मा सर्व व्यापक है। भावें ये श्लोक जिहड़ा मैं आसा की वार दे विचों साझा करन लगा हाँ, ये धन गुरु अंगद साहब महाराज जी ने उचारण किया होया। ते आम तौर पर जदों वख-वख आपां धर्मां नूं पढ़दे हाँ ते वख-वख धर्मां दी अपनी फिलोसफी है। इस्लाम का मनना है कि वह खुदा अल्लाह जन्नत दे विच रहिंदा है, ते हिंदू वीर पता की आखदे परमात्मा बैकुंठ दे विच रहिंदा है, परमात्मा स्वर्ग दे विच रहिंदा है, परमात्मा इस थां ते रहिंदा। वखरियां वखरियां देवतियां दियां पुरियां मन्नियां होईयां ने, ये शिवपुरी है ब्रह्मपुरी है। ते कई सिख भी ये गल करदे ने कि वह परमात्मा सचखंड विच रहिंदा है, पर कदे जे बाणी पढ़ के वेखिए पता लगेगा कि परमात्मा का कोई वखरा घर नहीं, परमात्मा कोई छोटा जिहा साडे वर्गा नहीं है कि वह परमात्मा छोटा जिहा घर बना के महल बना के बिल्डिंग बना के रहिंदा होवे। ये सारा संसार ही परमात्मा का घर है। यह जग सच्चा की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास, एक ना हुक्म समाए लए, एक ना हुक्मे करे विनाश, एक ना भाणा कढ़ लए, एक ना माया विच निवास। वो परमात्मा इस घर दे विच रहिंदा होया, संसार दे विच रहिंदा होया ही इस संसार दी कार नूं चला रहा है। फिर आम तौर पर आपां सतगुरु नूं धारण करन बारे सोचते नहीं, सारी जिंदगी इस तरह लंघ जाती है। बजुर्गी आ जाती, 70 साल 80 साल उम्र हो जाती है, अजे तक केसां की रहत बारे नहीं पता, परमात्मा की रजा बारे नहीं पता, जीवन नूं सवारन दे बारे नहीं पता। गुरु नानक साहब महाराज ने लाजमी क्या है कि सतगुरु तो बिना मुक्ति कोई नहीं, सतगुरु की प्राप्ति तो बिना परमात्मा की भी कोई प्राप्ति नहीं। बिन सतगुरु किनै ना पाया, बिन सतगुरु किनै ना पायो।
सतगुर विच आप रखियोन कर प्रगट आख सुनाया। महाराज जी कहते ने सतगुरु दे विच आप परमात्मा ने अपनी जोत नूं टिकाया होया। ते गुरु प्राप्त किवें हुंदा है? महाराज जी कहते नदर करां जे अपनी तां नदरी सतगुर पाया। ये जीओ बहुते जन्म भरमिया तां सतगुर शब्द सुनाया। परमात्मा की नज़र दे नाल किरपा दे नाल सतगुरु की प्राप्ति हुंदी है ते सतगुरु की किरपा दे नाल परमात्मा की प्राप्ति हुंदी है। सतगुरु एक विचोला है, परमात्मा की दरगाह का वसीठ है। जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, विछुड़िया मेले प्रभु हर दरग का वसीठ। वसीठ दा अर्थ है वकील, विचोला। सतगुरु तो बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं। फिर धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने हिंदू धर्म दे विच जो कर्म कांड अंध विश्वास प्रचलित सन उन्हां दा जोरदार भरवां खंडन कीता है। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी कहते हैं बड़े इस तरह के मनुख ने जो नकली जा रूप बना के होए तुरे होए ने। पूछा कित्थे जा रहे हो? कहन लगे कृष्ण जी की रास लीला चल रही उत्थे जा रहे हैं। की करोगे? कहन लगे नाटक करना है, उत्थे ड्रामा करना है। जिस इष्ट नूं अपने सब तो वध प्यारा मनते ने उस इष्ट की रास लीला कर रहे, नाटक कर रहे हैं, उसका रूप बना रहे हैं। कि कोई अपने इष्ट वर्गा हो सकता है? धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी कहते हैं ये कोई कृष्ण जी की उपमा नहीं है, ये तो तुसी निंदिया कर रहे हो, बदनामी कर रहे हो। कृष्ण जी का रूप बनाया होया तो आप भावें जीवन बहुत थले होवे, गरकिया होवे, भावें आप नशियां दे विच डिग्गा होवे। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी कहते हैं भावें कन्नां दे विच बड़े वड्डे वड्डे सोने दे वाले पाए हुए ने, पैरां दे विच घुंघरू पाए हुए ने, ते जदों रास लीला करदे ने सिर दे विच घट्टा पै जांदा है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी फिर कहंदे ने कि अवतार की पूजा करनी परमात्मा नूं प्रसन्न करना नहीं। अवतार ये जिन्ने पैगंबर ने देवते ने उस खुदा दे वाहिगुरू दे पैदा किए हुए ने। इस तरह के पता नहीं किन्ने देवते पीर पैगंबर अवतार परमात्मा की इस दुनिया दे विच आउंदे रहिंदे ने, आए भी ने, आउण वाले समय दे विच आउणगे भी। नानक निरभव निरंकार होर केते राम रवाल, केतियां कन कहानियां केते वेद विचार, केते नचा मंगते गेड़ मोड़ पूरे ताल, बाजारी बाजार में आए कढ़ बाजार, गावें राजे रानियां बोलें आल पताल, लख टकियां के मुंदड़े, मुंदड़े दा अर्थ है वाले, लख टकियां के मुंदड़े लख टकियां के हार, जित तन पाइयां है नानका से तन होवें छार। फिर महाराज जी कहते हैं इन्हां कर्मां दे नाल रास लीला दे नाल नाटक चेटक करन दे नाल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जानी। ज्ञान ना गल्ली ढूंढी है कथना करड़ा सार। ज्ञान की प्राप्ति के बारे बयान करना महाराज जी कहते हैं सख्त लोहे की तरह है। ज्ञान ना गल्ली ढूंढी है कथना करड़ा सार। नानक परमात्मा की जिहड़ी प्राप्ति है महाराज जी कहते हैं कि वह चलाकियां दे नाल नहीं हुंदी। फिर धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने उन्हां दा जिक्र भी किया जिहड़े ये मनुख गल्लां करदे ने मेरे सिर दे उपर ये पीर आया होया, ये देवता आया होया, ते लोग कहंदे ने इसनूं चौंकी आ रही, वो अपना सिर घुमाई जांदे ने, अपने केसां नूं खिलार के वो आले दुआले घुमाउंदे ने। ते कई इस तरह के पखंडियां दे कोल देहधारी साधुआं दे कोल लोग बड़ी चाह दे नाल जांदे ने, उन्हां दी बड़ी मानता करते हैं, उन्हां दे अगे पेटावां रखते हैं, हथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं। ते धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी कहते हैं जे सिर घुमाउण दे नाल घुमण दे नाल ही रब की प्राप्ति हुंदी है ते दुनिया दे विच पता नहीं इस तरह दीयां किन्नियां चीज़ां ने जो अपने आप घुमी जा रही ने कि उन्हां नूं कदे रब की प्राप्ति हुई है। आप जी कदे ब्रह्मंड दे विच ध्यान मार के वेखियो धरती घूम रही है, ये सूरज घूम रहा है, ये चंद्रमा घूम रहा है, जिन्ने ये ग्रह ने सारे घूम रहे ने। ये चंद्रमा ते धरती की भी परिक्रमा कर रहा है कि आप कह सकते हैं कि परमात्मा दे नाल वड्डे हो गए जां इन्हां ने परमात्मा की प्राप्ति कर लई। महाराज जी कहंदे ने कोलू घूमदा रहिंदा है, चरखे घूमदे रहिंदे ने,
ਫਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫਿਰਨ ਸਿਰ, ਉੱਡ ਉੱਡ ਰਾਵਾ ਝਾਟੈ ਪਾਏ, ਵੇਖਿਆ ਲੋਕ ਹਸੈ ਘਰ ਜਾਏ। ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰਹਿ ਤਾਲ, ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਧਰਤੀ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਟਕ ਪਟਕ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫਿਰਨ ਸਿਰ, ਉੱਡ ਉੱਡ ਰਾਵਾ ਝਾਟੈ ਪਾਏ, ਵੇਖਿਆ ਲੋਕ ਹਸੈ ਘਰ ਜਾਏ। ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰਹਿ ਤਾਲ, ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਧਰਤੀ ਨਾਲ। ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ, ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਨਾਮ, ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ। ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ, ਭਿੰਨੀ ਰੈਂਜ ਨਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ। ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ, ਥਲ ਵਾਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ। ਲਾਟੂ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਅਨਗਾਹ, ਪੰਖੀ ਭੌਂਦੀਆਂ ਲੈਣ ਨਾ ਸਾਹ। ਸੂਐ ਚਾੜ ਭਵਾਈਆਂ ਜੰਤ, ਨਾਨਕ ਭੌਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਭਵਾਏ ਸੋਏ, ਪਇਐ ਕਿਰਤ ਨਚੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਨੱਚ ਨੱਚ ਹਸੈ ਚਲੈ ਸੇ ਰੋਏ, ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਨੱਚਣਾ, ਡੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਚ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਨਾਨਕ ਜਿਨਾ ਮਨ ਭਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਓ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਗੋਂ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚਣਾ ਕੁੱਦਣਾ ਕੇਵਲ ਮਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਖੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਖੁੱਟ ਹਰ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ। ਤੂੰ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ, ਖਰ ਕਾ ਪੈਕਰ ਤਉ ਛੂਟਾ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਾਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਤੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੱਚਣਾ ਕੁੱਦਣਾ ਮਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਨਾਨਕ ਜਿਨਾ ਮਨ ਭਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾ ਲਈ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਲਕ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਤਿਲਕ ਲਾਏ ਨੇ, ਧੋਤੀ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਲਾਂ ਵਾਲਾ, 3 ਕਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, 3 ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਰਟਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ, ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗੁਲ ਸਮਾਦੰ, ਮੁੱਖ ਝੂਠ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਨ ਸਾਰੰ, ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ, ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਿਲਾਟੰ, ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇਂ, ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਂ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਂ, ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚਉ ਕਰਮੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਤੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਫਲ ਜਾਪਣਗੇ, ਵਿਅਰਥ ਜਾਪਣਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੀਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਫੋਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਤ ਦਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਠੋਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਪਤਾ, ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ, ਪਦਾਰਥ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ, ਉਹ ਭੋਜਨ, ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਤੱਕ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਅਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਚੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਚੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰ ਮੋਹੈ, ਘਰ ਮੋਹਿ ਪਿਤਰੀ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀਐ, ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੈ, ਜੇ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਕੁਝ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 550 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ, ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਠੋਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਦੋਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਗਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਵੋ, ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈਜ ਮਾਲੀ, ਧਾਨ ਮਲੇਛਾਂ ਖਾਈ, ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ, ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਰੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਖੰਡ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਅਸਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਵਤ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪੜ੍ਹ ਕਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰ,
बंदे से जे पवह विच बंदी देखण को दीदार। पर धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी कहते हैं ये गल बिल्कुल झूठ है। कुरान पढ़न वाला ही असल बंदा नहीं है। जदों महाराज उदासी करदियां सियालकोट तो पसरूर गए सन तो महाराज नूं एक फकीर मिलिया सी जिसका नाम सी मियाँ मिठा। मियाँ मिठा अपने आप दे विच बड़ा ज्ञानवान, खुदा तक अल्लाह ताला तक पहुँचया होया। गुरु नानक साहब नूं उपदेश करन लग पिया। कहन लगा तुसीं भी यात्रावां कर रहे हो, लोकां नूं प्रचार करदे हो, उपदेश देंदे हो। अज मैं तुहानूं एक पते दी गल दसणी है। किहड़ी पते दी गल? कहन लगा पहला नाम खुदाए दा, दूजा नाम रसूल। नानक कलमा जे पढ़े तां दरग पवै कबूल। कहन लगा सब तो पहला जे नाम आउंदा खुदा दा हुंदा है, तो फिर दूजे नंबर के उत्ते कहन लगा मुहम्मद साहब जी उस खुदा के रसूल ने। तो कहन लगा जे तू कुरान पढ़ लवें, गुरु नानक साहब नूं समझा रहा, जे तू कुरान पढ़ लवें तो उस खुदा की दरगाह दे विच कबूल हो जावे। गुरु नानक साहब महाराज मुस्करा पे, हस पे। तो फिर महाराज ने भी उसनूं उपदेश दिता। कहन लगे ये गल तां सच है, पहला नाम खुदाए दा, पर मैं इस नाल सहमत नहीं कि दूजा नाम रसूल। मैं तो ये गल आखदा किते नबी रसूल, किन्ने ही उस नबी परमात्मा के नबी पैदा किए हुए ने, रसूल पैदा किए हुए ने। तो महाराज जी कहते हैं केवल कलमा पढ़न दे नाल ही खुदा की प्राप्ति नहीं। मैं ये गल आखदा शेखा नीयत रास कर तां दरग पवै कबूल। हे मियाँ मिठा शेख जी अपनी नीयत नूं रास करो, अपने मन नूं साफ ते पवित्र कर लवो, अपने मन दे विचों वख वख धर्मां दे वितकरे नूं हटा देवो, इस शरा नूं हटा देवो, उस मालक की दरगाह दे विच कबूल हो जावोगे। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज मुसलमानां नूं उपदेश कर रहे ने कि तुसीं ये मनदे हो कि जदों साडे विच प्राणी कोई चढ़ाई करदा है तो उसनूं आपां साड़ना नहीं है, दफनाउणा है, धरती दे विच उसनूं दबना है। गुरु नानक साहब महाराज कहंदे तुसीं विचार पेश करदे हो कि जदों क्यामत दा दिन आवेगा, मुहम्मद साहब आउणगे, वो सारियां कबरां दे विचों मुर्दियां नूं उठाउणगे, हिसाब किताब होवेगा, लेखा जोखा होवेगा, ते जिस दे कर्म चंगे होणगे उसनूं मालक दी जन्नत प्राप्त होवेगी, खुदा दी जन्नत दे विच उसनूं निवास मिलेगा। ते धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने बड़ी करारी चोट की है। कहन लगे मुसलमानां दी जिहड़ी कबर है वो सारा शमशान घाट, हजूर कहंदे ने उत्थे घुमियार आउंदा है, मिट्टी दे भांडे घड़न वाला। उस शमशान घाट की कब्रिस्तान की जिहड़ी मिट्टी है बड़ी चीकनी जी हुंदी है, भांडे बहुत वधिया बनते सन। तो उत्थे कोई घुमियार आउंदा सी, उस मिट्टी नूं अपने घर लैके चला जांदा सी ते उस मिट्टी दे नाल कच्चे भांडे तैयार करदा सी। ते जदों कच्चे भांडियां नूं तैयार करके वो आवी दे विच पाउंदा सी ते गुरु नानक साहब महाराज जी कहंदे ने वो भांडे सारे लाल हो जांदे सन अग दे नाल। ते इस तरह लगदा सी जिवें वो मिट्टी आवाज़ कर रही होवे। वो सारी मिट्टी ते मुसलमान दी होया करदी सी। ते हजूर कहंदे ने वो मिट्टी दे विचों भी इस तरह लगदा सी जिवें आवाज़ आ रही होवे कि मैं बहुत ज़्यादा तड़फ रहा हाँ। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने उपदेश किया, मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पई कुम्हार, घड़ भांडे इट्टां कीआं, जलदी करे पुकार, जल जा रोवै बपुड़ी, झड़ झड़ पवै अंगियार, नानक जिन करतै कारण किया, सो जाणै करतार। धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने अपने सिखां नूं भी उपदेश दिता है कि समय के हिसाब के नाल किसी भी मनुख के शरीर नूं बिले लाया जा सकता है। आपां वेखदे हां कि मुहम्मद साहब का जिहड़ा जन्म है वो इस्लामिक कंट्री दे विच होया। उत्थे सारे अजकल इस्लाम दे लोग रहिंदे ने, उत्थे रुख दरखत पौधे बहुत घट होया करदे सन, जिस करके उन्होंने दफनाउणा आरंभ कर दिता। पर गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने संस्कार की प्रथा क्यों चलाई?
इसका एक साइंटिफिक रीज़न है कि जदों कोई बजुर्ग चढ़ाई करता बहुत सारे रोग उसनूं लगे हुंदे ने, कई जहरीले तत्व भी शरीर दे विच हुंदे ने। ते जदों अग दे विच किसी मनुख दे शरीर नूं साड़िया जांदा है, वो जहरीले तत्व सड़ के राख हो जांदे ने ते वातावरण दे विच हवा दे विच वो फैलदे नहीं। पर जे शरीर नूं संस्कारन दा प्रबंध ना हो सके, सिख रहत मर्यादा जो अकाल तख्त साहब दे वल्लों प्रवानित है, श्रोमणी कमेटी जो छापदी है, उस विच लिखिया होया कि समय के हिसाब के नाल शरीर नूं दफनाया भी जा सकता है, जल प्रवाह भी किया जा सकता है, संस्कार भी किया जा सकता है। धन गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी उपदेश करदियां करदियां इन्नी ज़्यादा निमरता दे विच आउंदे ने ते आप खुद सिखां नूं उपदेश करदे ने कि जे निमरता लियाउणी होवे ते कदी सिमल रुख नूं वेख लैना। सिमल रुख बड़ा उच्चा, बड़ा लम्मा, बड़ा चौड़ा हुंदा है, फल भी लगदे ने, फुल भी लगदे ने, पंछी भी उसदे कोल आउंदे ने, पर निराश हो के वापस चले जांदे ने। कारण फल दे विच मिठास कोई नहीं, उसदे उत्ते जिहड़े फल लगे हुए ने उन्हां दे विच मिठास नहीं, फुल्लां दे विच कोई खुशबू नहीं, लकड़ उसदी भी कोई ज़्यादा चंगी नहीं, पत्ते उसदे ज़्यादा कम नहीं आउंदे। ते महाराज जी कहते ने जिहड़ा मनुख वो सिमल दे रुख की तरह बहुत ज़्यादा आकड़िया होवे, अपने आप नूं उच्चा समझदा होवे, मैं बहुत ज़्यादा वड्डा हाँ, मैं बड़ा ज्ञानवान हाँ, महाराज जी कहते उस मनुख का हाल सिमल रुख की तरह है। सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच, ओए जे आवहें आस कर जाहे निराशे कित, फल फिके फुल बक बके काम न आवहें पत, मिठत नेवी नानका गुण चंगियाइयां तत। फिर गुरु नानक साहब महाराज जी कहते ने तेरी जुबान तो एक भी बोल कौड़ा ना निकले, क्योंकि कौड़ा बोलन दे नाल तेरा तन फिक्का हो जाएगा, मन फिक्का हो जाएगा, तेरा सारा जीवन फिक्का हो जाएगा। ते जिहड़ा बंदा तेरे बोलां नूं सुनेगा वो गुस्से दे नाल भर जाएगा, क्रोध दे नाल भर जाएगा। नानक फिक्के बोले तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्की सदिया, फिक्के फिक्की सोए, फिक्का दरगह सुटिया, मुँह थुक्कां थुक्के पाए, नानक मूर्ख आखिए पाणा लाए सजाए। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज फिर उन्हां दे वल जांदे ने जिहड़े अपने आप नूं बड़े पढ़े लिखे समझदे ने। महाराज जी मटन साहब जांदे ने, उत्थे खजूर दा मिलाप चतुरदास पंडित दे नाल हुंदा है। अज कल आपां डिग्रियां दी गल करदे आ कि मेरे कोल ये डिग्री आ, पुराने समय के अंदर इन्ना ज़्यादा लोग पढ़ते सन, पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, उन्हां दे कोल गड्डियां दे गड्डे किताबां पुस्तकां होया करदियां सन। जदों भी किसी स्थान ते जांदे सन नाल उन्हां दे गड्डियां काफले चलदे सन, ऊठ चलदे सन, जिन्हां ऊठां दे उपर किताबां लदियां हुंदियां सन। महाराज जी कहंदे जिथे बैठते सन चर्चा शुरू हो जाती सी, गोष्ठी शुरू हो जाती सी, इन्ने ज्ञानवान। पर महाराज जी कहंदे ने जे एक गल तुहाडे नाम दी पल्ले नहीं, ये पढ़िया लिखिया सारा तुहाडा व्यर्थ है। पढ़ पढ़ गड्डी लदियां है, पढ़ पढ़ भरियां साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइयां है, पढ़ पढ़ गड्डियां खात, पढ़ियां जेते बरस बरस, पढ़ियां जेते सास, पढ़ियां जेती आरजा, पढ़ियां जेते मास, नानक लेखे एक गल होर हौमै झखना झाख। हजूर ने बड़ी कृपालता की है जो सानू आसा की वार दी बाणी दे विच ये सुचज्जे उपदेश बख्शिश कीते ने। सतगुरु दी रहमत है जो भुलियां नू, भटकियां नू, अंध विश्वास दे विच गलतान लोकां नू, पखंडवाद दे विच व्यस्त लोकां नू धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने कढ़ के एक ऐसा सिख बनाया है जो गुरु की रजा दे विच चलदा होया परमात्मा की बड़े सुखैन ढंग दे नाल, सरल ढंग दे नाल प्राप्ति कर सके। अज दा जिहड़ा पावन वाक अमृत वेले आया है, इतफाक दे नाल हजूर ने अज सिखां नूं उपदेश कीता है, सो सिख सखा बंध पै भाई, जे गुर के भाणे विच आवै, आपन भाणै चलै भाई, विछड़ चोटां खावै। हजूर कहंदे ने मेरा वो भरा है, वो सिख है, वो मेरा रिश्तेदार है जिहड़ा सतगुरु दे भाणे दे विच आ जावे। महाराज रहमत करे। धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने तां करोड़ां लोकां नूं तारिया है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियां कहंदा है कि गुरु नानक साहब वेले
3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਔਰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास ना परिया रे। धन धन श्री गुरु नानक साहब जी के पावन प्रकाशपुर दियाँ संगतां नूं बहुत बहुत बधाइयाँ। आप जी सरवण कर रहे सी गुरु नानक देव जी का उपदेश, जो कि आसा जी की वार भी दिता है भाई राम सिंह जी कोलों। इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। हुण आप जी 8:30 बजे तक कीर्तन सरवण करोगे भाई परमिंदर सिंह जी रागी कोलों।